Thank you. Thank you so much. Thanks. Thank you. Hi. So you're wondering what am I doing with my phone? My inbox is bombarded with so many messages from various friends and family members who are congratulating me as I've cleared my UGC NET in first attempt. So hi people, welcome to my channel, and in this video I'm going to talk about how I cleared my UGC NET in English literature in my first attempt. Okay, but before we get into the details of it, I would just make a humble request. If you are also preparing for UGC NET in English literature, then do subscribe to my channel, because every Saturday and every Sunday I'll be uploading videos about how you can channelize your preparation, what all writers you need to study, how to look at certain writers from NET point of view, how to make notes, and so on and so forth. So the very first thing that helped me to clear NET was my passion towards literature. Fine, guys, people have been, visiting and sharing this thing. They all think that, this passion thing is very philosophical, but let me tell you guys, passion is the driving force. कोई भी एग्जाम आप क्लियर करें, अगर आप पैशनेट नहीं है उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, उस एग्जाम के बाद आप जो बनेंगे उस चीज के लिए, उस करियर के लिए, सो आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू सस्टेन दिस एग्जाम प्रिपरेशन. बिकॉज जब मैं प्रिपेयर कर रही थी यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर के लिए, सो आई यूज्ड टू स्टडी फॉर लाइक 16 hours and people used to find this very impossible. 16 घंटे, and that to a humanities student, because mostly humanities वालों के साथ ये mentality लोग attach कर देते हैं कि अच्छा ये तो वो है जो एक रात पहले गाइड बुक से पढ़ के पास होते हैं. But I'm telling you, it's not ट्रू. हम भी उतना ही पैशन से पढ़ते हैं जितना पैशन से एक पीएमटी का स्टूडेंट या एक आईआईटी का स्टूडेंट या फिर फॉर दैट मैटर सीए एंड सीएस वाले पढ़ते हैं. ओके, सो पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रॉम अ वेरी अर्ली स्टेज इन माय लाइफ आई वाज ऑलवेज वेरी पैशनेट अबाउट लिटरेचर एंड आई लव टीचिंग. ओके, व्हेन आई वाज इन 10th standard in 2010, I opened my own soft skill institute wherein I used to teach people about how you can succeed in life, time management, spoken English and all that stuff. So I was very very passionate about teaching, and literature was my love. Okay, my first love is literature. So these two things would somewhere help you to keep yourself. For me it was that kind of thing that it helped me to keep myself boosted throughout the preparation time कि मुझे sustain करना है. because 16 घंटे 10 दिन पढ़ना आसान है, 5 महीने तक 15 घंटे 16 घंटे पढ़ना बहुत tiring हो जाता है. but if you're passionate about it, then nothing can stop you. also at the same time कहीं ना कहीं this passion helps you to keep away from all the distractions. क्योंकि जब आप preparation start करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं पूरा universe एक षड्यंत्र करता है कि कैसे आप प्रिपेयर ना कर पाए. उसी टाइम आपके फ्रेंड्स फोन करेंगे कि चलो शॉपिंग पे चलते हैं, उसी टाइम आपके पेरेंट्स एक वेकेशन प्लान कर लेंगे, उसी टाइम सडनली आपको एक लड़के पे क्रश हो जाएगा. सो ऑल दीज थिंग्स हैपन. ओके, बट देन यू नीड टू बी वेरी वाइज कि ये सारी चीजों को साइडलाइन करते हुए उस 5 महीने की ड्यूरेशन में कैसे आप स्टडीज पे फोकस करें. पीपल यूजुअली आस्क मी कि बहुत नींद आती है, पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, कैसे. सो इफ यू लाइक स्लीपिंग, एवरीबडी लाइक्स दैट, बट देन how to reduce your sleeping time? You can only reduce your sleeping time by loving something more than your sleep. So if you love literature more than your sleep, then अपने आप नींद खुलेगी. Like this used to happen with me. I am a very late riser. अभी भी when I'm not preparing for UGC NET for the next time, and मैं अपने ऑडियो लेक्चर्स के लिए डिलीवर करने के लिए सुबह उठती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि कहीं ना कहीं that is my passion जो मुझे सुबह उठाता है. नहीं तो I cannot get up before 8 or 9. Okay, इसी वजह से मेरी कॉलेज की क्लासेस मिस हो जाती थी. So you need to have this thing in your mind कि अगर आप पैशनेट है लिटरेचर को लेके, तभी आप क्लियर कर पाएंगे. ओके, सो मेरा जो ऑनलाइन कोर्स है विच आई एम रनिंग ऑन माय वेबसाइट फॉर यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर, उसमें भी आई मेक श्योर कि मैं सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को एनरोल करती हूँ जो एक्चुअली पैशनेट है, जो नेट को एक बार में क्लियर करना चाहते हैं. बिकॉज जब मैंने नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो आई हैड दिस थिंग वेरी वेरी क्लियर इन माई माइंड कि करना है अर्पिता तो एक बार में क्लियर करेंगे, नहीं तो जिंदगी में कभी नेट का पेपर नहीं दूंगी. उसको ऐसा नहीं बनाना है कि इस बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, पेपर दे आएंगे, अगली बार और पढ़ लेंगे और पेपर दे आएंगे वापस से, 3-4 बार में तो क्लियर हो ही जाएगा. सी, जिंदगी के साथ मजाक थोड़ी करना है यार. पढ़ रहे हो, करियर बनाना है, डेडिकेशन के साथ बनाए.
Okay, so the second point is dedication and discipline. So now guys, dedication and discipline, that is equally important. Passion अगर important है तो अगर उस passion के साथ में hard work नहीं जोड़ा जाए, that too with consistency, तो कहीं ना कहीं results नहीं निकलते. Okay, so you need to keep this thing in mind कि कोई भी चीज discipline के बिना you cannot accomplish in your life. Also at the same time, you know, there's this quote I used to love a lot. Like I still loves it, but then when I was gymming at one point of time, I had this poster in my room. Okay, and that poster said that, you know, I hated every minute of training. But guess what? Every time I used to tell myself that don't quit, suffer now and live rest of your life as a champion. So the same theory goes everywhere, and especially for UGC NET English preparation, because you need to have this thing in mind कि कोई बात नहीं, अभी मुश्किल है, अभी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मेरे पसंद के काम मुझे सैक्रिफाइस करने पड़ रहे हैं, मेरी वो फेवरेट मूवी जो आई है मुझे उसे नहीं देखना है, मेरे जो टीवी शोज है उन्हें मुझे अवॉइड करना है, मेरे फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग एक्सपीरियंस, उनके साथ कॉफी पे जाना मुझे अवॉइड करना है, बट this what I'm doing right now will definitely yield good result in the future. So that you need to keep in mind. And discipline बहुत important है friends. Regularly पढ़िए. Most of the time मैंने students में क्या देखा है कि आप पढ़ते हैं, ब्रिटिश लिटरेचर स्टार्ट करते हैं, पहले दिन 10 घंटे पढ़ लिया, पूरी बुक का आधी बुक कंप्लीट कर ली, एंड सेकेंड डे से आप भूल जाते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर नामक एक किताब आपकी टेबल पे पढ़ी है जो आपका इंतजार कर रही है कि आप उसे खोलें और पढ़ें. ओके, सो कंसिस्टेंसी रखिए, कम पढ़िए बट रेगुलर पढ़िए, दैट इज इंपॉर्टेंट. मेरे ऑडियो लेक्चर्स में भी आप एक चीज देखेंगे, मैं रेगुलरली कम ऑडियोज डिलीवर करती हूँ, 2 घंटे 2.5 घंटे के ऑडियोज डिलीवर करती हूँ, बट रेगुलरली कर रही हूँ. ऐसा नहीं है कि एक दिन मैंने 10 घंटे कर लिया और हफ्ता भर आप भी भूल गए कि लिटरेचर कुछ होता है और मैं भी भूल गई. सो कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट, दैट टू यू क्रिएट योर कल्टिवेट योर इंटरेस्ट. धीरे 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 you start loving literature. So that happens. Okay, so the first point was passionate about literature. Second point was have discipline and dedication in your life if you are very serious about clearing UGC NET in first attempt. ओके, सो फिलोसॉफिकल बातों को साइडलाइन करते हैं और अब बात करते हैं 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी करेंगे तो आपको खुद से पूछने होंगे, एंड दीज वर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने खुद से पूछे थे और मुझे एक रास्ता मिला था, एक ब्लूप्रिंट, एक गाइडलाइन मिली थी कि कैसे प्रिपेयर करना है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टू स्टडी. नाउ इतना बड़ा सिलेबस है गाइस, 5 जन्म क्या 7 जन्म भी पढ़ोगे ना तो भी कंप्लीट नहीं होगा, इतना कुछ लिखा गया है अब इन इंग्लिश under the sun. Like itne, if you talk about literature since 500 AD, or if you go back to Greek period जिसे हम ट्रांसलेशन में आज पढ़ते हैं, इतना सब कुछ पढ़ना है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चार्ट आउट करें कि क्या पढ़ना है इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, सो इसके लिए आई मेड अ डिटेल्ड वीडियो वेयरइन आई हैव एक्चुअली एक्सप्लेन इन डिटेल कि क्या क्या मॉड्यूल्स में मैंने अपने सिलेबस को डिवाइड किया था एंड हाउ आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. अगर मैं एक ब्रीफ में आपको बात बताऊं, सो आई एक्चुअली डिवाइडेड द एंटायर सिलेबस इनटू 10 मॉड्यूल्स. The first was British literature, then European, then we had post-colonial, American, and for that matter Indian, and then theory, criticism. These were all different modules. हर मॉड्यूल को मैंने फर्दर डिवाइड किया बिकॉज व्हाट टू स्टडी के साथ में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको मैक्रो गोल्स को माइक्रो लेवल पे डिवाइड करें. लोग बोल देते हैं कि हम 1 महीने में थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म कर देंगे, बट आपको पता होना चाहिए उस 1 महीने में अगर आप थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो उस 1 महीने के 1 हफ्ते में आपको क्या करना है, उस 1 हफ्ते के 1 दिन में आपको क्या करना है, और आज के दिन के इस घंटे में आपको क्या पढ़ना है. तभी आप धीरे 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 अपने गोल तक पहुंच पाएंगे. जस्ट लाइक यू नो, इफ आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली एंड मुझे ये पता है कि सिर्फ दिल्ली जाना है, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट ये है कि अभी अगर मैं निकल रही हूँ तो मुझे सबसे पहले कौन सा टर्न लेना है, उसके बाद मुझे कितने किलोमीटर हाईवे पे जाना है, फिर मुझे कौन सा कट लेना है, फिर मैं कहाँ रुकूंगी, 1 घंटे बाद मैं कहाँ पहुंचूंगी, 2 घंटे बाद मैं कहाँ पे रुकूंगी, 5 घंटे बाद मैं फाइनली दिल्ली पहुंचूंगी. तो उसके बाद भी यू नीड टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि अगर आप गुड़गांव पहुंच रहे हैं तो आपको ट्रैफिक पक्का मिलेगा. तो आपको एक कंटिजेंसी प्लानिंग करके चलनी होती है कि इनकेस बीमार हो गए तो आपको वो टाइम थोड़ा सा अपने शेड्यूल में से निकालना होगा कि इनकेस मैं 2 दिन बीमार हो गई तो आई नीड टू यू नो कवर अप दैट सिलेबस इन द सेम वीक, तो मुझे 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना होगा. इनकेस कोई फैमिली इमरजेंसी आ गई एंड यू कैन नॉट हेल्प इट, आपको जाना पड़ रहा है, सो आप कैसे प्लान आउट करेंगे. सो व्हाट टू स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इसके लिए यू नीड टू मेक योर ओन कस्टमाइज सिलेबस बिकॉज जो सिलेबस यूजीसी नेट वालों ने दिया दैट इज वेरी वेग, दैट इज वेरी इंडिकेटिव. उस सिलेबस को बेस में रख के अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे सो समवेयर डाउन द लाइन आप रिग्रेट करेंगे कि या तो आप कोर्स नहीं कर पाए या अगर कर भी पाए तो आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिला. मैंने पर्सनली जब यूजीसी नेट की तैयारी करी थी तो आई रिवाइज द सिलेबस 4 times बिफोर गोइंग टू द
एग्जाम. सो आई हैड सो मच क्लैरिटी इन माई माइंड, इसीलिए मैं एक बार में क्लियर कर पाई. सो व्हाट टू स्टडी बहुत अच्छे से याद रखिए, क्या क्या पढ़ना है, हर राइटर में भी क्या क्या पढ़ना है. मेरे ऑडियो लेक्चर्स में मैं एक चीज मेक श्योर करती हूँ कि आई कीप ऑन टेलिंग क्या क्वेश्चंस आए हैं उस राइटर के बारे में या उस राइटर के वर्क्स के बारे में इन द प्रीवियस ईयर पेपर, सो दैट स्टूडेंट्स नो दैट दिस इज व्हाट Arpita is telling us to study, because such type of questions have been there in the previous year papers. Okay, so you need to strategize accordingly. The second most important question, how to study. Guys, हाउ पता होना बहुत जरूरी है. मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल मेक दिस मिस्टेक. मैंने देखा है कि मेरे साथ वाले जो फ्रेंड्स थे या मैं जिनको जानती थी, उन लोगों ने कहीं ना कहीं नेट क्लियर नहीं कर पाए बिकॉज दे वर नॉट नोइंग हाउ टू स्टडी. वो पढ़ने बैठ जाते थे, दे वर नॉट नोइंग नोट मेकिंग टेक्निक, दे वर नॉट नोइंग द मेमोराइजेशन टेक्निक्स दैट दे कैन यूज टू रिटेन बेटर. ऑल्सो आपको ये देखना होगा आप दिन के कौन से समय पढ़ पाते हैं. कई लोग होते हैं दे आर नाइट आउट्स, कई लोग होते हैं दे आर मॉर्निंग लार्क्स जो सुबह उठ के पढ़ पाते हैं, कई लोग होते हैं जो डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन में पढ़ पाते हैं, कई लोग होते हैं जो विजुअल लर्नर्स होते हैं जिनको कॉपी में अगर नोट्स बना रहे तो दे कैन यूज कलर्स. लाइक आई एम अ विजुअल लर्नर फॉर एग्जाम्पल. कई लोग होते हैं जो ऑडियो लर्नर्स होते हैं, उनके लिए ऑडियो इंपॉर्टेंट है, वो लोग सुन के याद कर पाते हैं, रिटेन कर पाते हैं. कई लोग होते हैं जो काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं. ओके, सो आपको अपना लर्निंग स्टाइल डिवाइस करना होगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू स्टडी. द थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी विल बी एड्रेसिंग इज where to study from. Now this is the most important thing because मैंने देखा था मेरे साथ काफी सारे लोग थे जो लास्ट मोमेंट तक सिर्फ नोट्स इकट्ठा कर रहे थे. इसके भी नोट्स ले लूं, ये भी बुक पढ़ लूं, ये भी कर लूं. सी गाइस, ऐसे नहीं होता. आपको आप there is this beautiful saying that my dad says sometimes कि दो घोड़ों पे सवार होके you cannot walk, okay, you cannot go, you cannot cross a path. या दो नावों पे सवार होके आप क्रॉस नहीं कर सकते एक सी को. दो नाव पे अगर आप सवार होगे तो डिसबैलेंस होके गिर जाओगे. सेम थिंग हैपेंस. आप चार जगह से अलग अलग एडवाइस ले रहे हो, कंफ्यूज हो जाओगे. आप मानेंगे नहीं बट मैंने सिर्फ अपना एक जब चार्ट बनाया था कि मुझे कैसे पढ़ना है, आई मेड श्योर कि मैं क्या क्या चीजें रेफर करूंगी. उसके बाद मुझे किसी ने कोई भी इंपॉर्टेंट स्टफ बताया, मैंने एक्चुअली उसे हाथ नहीं लगाया बिकॉज मुझे पता था कि कहीं ना कहीं वो मेरा ऑलरेडी जो शेड्यूल है उसको डिस्टर्ब कर देगा. सो मुझे क्लियर था मुझे ये पढ़ना है. उसके बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम वेयर टू स्टडी में यू वोंट गेट बुक्स, a lot of books that can help. Internet will help you a lot. मैंने बहुत अलग अलग वेबसाइट सब्सक्राइब करी थी. लाइक देयर आर सो मेनी अमेरिकन वेबसाइट्स आउट देयर, देयर आर सो मेनी पेड कोर्सेज जिन्हें मैंने सब्सक्राइब किया था. लाइक फॉर लिटरेरी थ्योरी इटसेल्फ आई सब्सक्राइब टू 5 ऑनलाइन कोर्सेज जिनसे मैंने सुन के अपना खुद का कंटेंट बनाया था. तो इट्स इंपॉर्टेंट. फ्री कंटेंट से आई डोंट थिंक इट हेल्प्स यू अ लॉट बिकॉज कहीं ना कहीं फ्री कंटेंट वाले बहुत अच्छा मटीरियल नहीं प्रोवाइड करते. व्हेन यू आर पेइंग फॉर समथिंग आपको बेस्ट मिलेगा. एंड दैट टू मैंने तो 4-5 साइट से अलग अलग रजिस्टर करके अपने अकाउंट बनाए थे. आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन व्हाट ऑल बुक्स यू कैन रेफर एंड व्हाट ऑल स्टडी मटेरियल यू शुड रेफर फॉर UGC NET English Literature, so you can just have a look on the video. Okay, so let's move on to my next point. Now guys, what is important is that हमने देखा passion important है, discipline important है, what to study, how to study and from where to study important है. इसके साथ में one very important stuff is stress. गाइज आपको लगेगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस, लाइक स्ट्रेस फ्री होके पढ़ना चाहिए. अर्पिता इज सेइंग स्ट्रेस में पढ़ो. आई एम नॉट सेइंग स्ट्रेस में पढ़ो, बट आई एम सेइंग जब पढ़ते हो तब स्ट्रेस मत रखो, लेकिन एक पॉजिटिव स्ट्रेस अपने दिमाग में रहने दीजिए. आपको क्या लगता है कि इंडिया जब वर्ल्ड कप के लिए खेलती है, द इंडियन क्रिकेट टीम व्हेन इट प्लेस फॉर वर्ल्ड कप एंड विराट कोहली या धोनी जब बैटिंग के लिए जाता है, तो डू यू थिंक उनके दिमाग में स्ट्रेस नहीं होता होगा? they'll feel अरे एकदम चिल्ड आउट होकर मैदान में जाते हैं खेलने के लिए. I don't think so. And they have actually accepted this fact in the interviews कि जब वो जाते हैं तो एक परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, एक स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं they can take that challenge as an opportunity and then they give their best. सेम थिंग अप्लाइज टू UGC नेट प्रिपरेशन ऑल्सो. एक पॉजिटिव स्ट्रेस रखिए. एक रीजन ये भी होता है लोग फेल हो जाते हैं इस एग्जाम में बिकॉज कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस फ्री होते हैं. अरे क्लियर कर लेंगे, UG-PG का सिलेबस पढ़ लेंगे, हो जाएगा, अरे आराम से निकाल लेंगे, अभी इतनी क्या जल्दी है, 5 महीने. आई एम टेलिंग यू गाइस, ये 5 महीने ऐसे उड़ जाते हैं, लिटरली ऐसे. मतलब मुझे एक महीने बाद जब मैं वापस कैलेंडर देखती थी, आई वाज ओह माय गॉड 1 महीना हो गया, ऐसा एक्सप्रेशन होता था मेरा. इतना कोर्स है ना कि आप पढ़ते जा रहे हैं, टाइम इट रन्स अवे वेरी फास्ट. ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम कि थोड़ा पॉजिटिव स्ट्रेस दिमाग में रखें. रोज सुबह जब उठे तो अपने आप को थोड़ा सा डराए कि इतना कुछ पढ़ना है, तभी आप अपने आप को यू कैन मोटिवेट. आज आपके पीछे अगर मैं डॉग्स को छोड़ दूं तो आप अपने आप आपकी बॉडी बेस्ट कैपेसिटी में भागती है. इवन इफ यू आर नॉट अ मैराथन रनर, आप भागेंगे जस्ट टू सेव योरसेल्फ. सिमिलरली अगर आपने अपने
दिमाग में थोड़ा सा स्ट्रेस डाला तो आपकी बॉडी, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली बेस्ट तरीके से फंक्शन करेगा, ज्यादा रिटेन कर पाएगा। जैसे मेरे फ्रेंड्स ही बोलते थे हमेशा कि कहीं ना कहीं पढ़ तो रहे हैं यार अर्पिता, लेकिन रिटेन नहीं कर पा रहे। दैट इज बिकॉज आप कोशिश नहीं कर रहे रिटेन करने की, आपको अपने दिमाग को सिग्नल्स देने होंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दिस थ्योरी वर्क्स अ लॉट, आप गूगल कर सकते हैं। आई एम अ वेरी ग्रेट फॉलोअर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इट सेज दैट जो आप एक्चुअली सोचते हैं दैट हैपेंस इन योर लाइफ। एंड मैंने जब पहली बार यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करी थी, आई मेड दिस थिंग वेरी क्लियर टू माई माइंड कि मैं क्लियर करूंगी, पहली बार में आई क्लियर इट। ओके, एंड वो एक स्ट्रेस मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली था कि क्लियर करना ही है, क्लियर करना ही है, नहीं तो अगली बार नेट नहीं दूंगी, सो क्लियर करना ही है। उस वजह से आई केप्ट माई सेल्फ ऑन टोज। मैं पढ़ती गई, आगे सिलेबस करती गई, रिविजन करती गई, स्ट्रैटेजीज बनाती गई। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो कीप दिस थिंग इन माइंड, थोड़ा सा पॉजिटिव स्ट्रेस अपने दिमाग में बिल्डअप करिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक एक कॉन्सेप्ट पे रुकें और आप समझे वो कॉन्सेप्ट अगर ऐसा लिखा गया तो क्यों लिखा गया, उस एज में ऐसा क्या हुआ। सो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे बिल्ड करने की कोशिश करिए अपने नोट्स को और उसी टाइप से अपडेट करिए। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी विल हेल्प यू अ लॉट। मैंने खुद ने ये चीज रियलाइज करी थी जब मैंने सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर उठाई। सो मुझे ग्रीक माइथोलॉजी के बारे में नहीं पता था, ग्रीक डायनेस्टीज के बारे में नहीं पता था, रोमन सिविलाइजेशन के बारे में नहीं पता था, बिकॉज कहीं ना कहीं कभी भी बचपन में ग्रीक सिविलाइजेशन, ग्रीक माइथोलॉजी पढ़ी नहीं। इंडियन माइथोलॉजी फॉर दैट मैटर हमने हमेशा से अपने घरों में सुनी है, एंड वी ऑल नो अबाउट ऑल दोस गॉड्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड्स एंड एवरीथिंग। बट ग्रीक माइथोलॉजी में इट इज सो कंफ्यूजिंग। जब मैंने पहली बार 15 दिन लगा के ग्रीक माइथोलॉजी समझी थी नेट की प्रिपरेशन के टाइम पे, सो आई वाज सो अमेज्ड कि ये तो पूरी फैमिली चार्ट की तरह बन गया। देयर आर टाइटन्स, फिर वी हैव अदर गॉड्स, उनकी भी खुद में यू नो दे आर मैरिंग देयर ओन कजिन्स। सो एक बहुत कंफ्यूजिंग सॉर्ट ऑफ थिंग है, बट जब उसका आप चैनलाइज करते हैं तो यू फाइंड कि बहुत ही यू नो इंटरेस्टिंग है ग्रीक माइथोलॉजी। एंड सेम गोज विद बाइबल। मैंने खुद ने बाइबल की जो समरीज अवेलेबल थी इंटरनेट पे, मैंने वो पढ़ी। सो आई रेफर टू सो मेनी समरीज, और उसके बाद मैंने बाइबल, ग्रीक माइथोलॉजी, रोमन सिविलाइजेशन समझने के बाद आई एंटर्ड इनटू ब्रिटिश लिटरेचर। बिकॉज कहीं ना कहीं रेनेसा पीरियड वाज एक्चुअली व्हाट, रेनेसा वाज रीबर्थ। रेनेसा का अगर आप वो देखें, ओरिजिन देखें वर्ड का, तो इट मीन्स रीबर्थ। रीबर्थ किस चीज का? द ग्रीक एंड द रोमन, एंशिएंट ग्रीक एंड द रोमन सिविलाइजेशन के जो आर्ट फॉर्म्स थे, जो टेक्निक्स था, उनका रीबर्थ इन द इंग्लैंड। ओके, सो इसीलिए मैंने कहीं ना कहीं रोमन एंड ग्रीक सिविलाइजेशन को पहले पढ़ा, जिससे मैं रेनेसा को एक्चुअल डेप्थ में समझ पाऊं। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। फाइन, सो इन दिस वीडियो आई हैव टॉक्ड अबाउट सर्टेन थिंग्स दैट you must remember which will help you to clear net in your first attempt. If you wish to look at the online course that I'm providing on my website, you can go to the website www.arpitakarwa.com. Also in the website you will find a detailed syllabus, a detailed course content that I have uploaded, wherein I've talked about all the ages, all the writers, all the modules that you need to study. So you can have a look there. Also like my Facebook page, because every day I upload a Go Net quiz, so you can keep yourself on toes कि क्या questions पूछे जा रहे हैं, किन questions का क्या आंसर है. Also at the same time you can subscribe to my channel and share it with other net aspirants as well. So see you, bye bye, and keep loving literature.